Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra. In today's video session, we are going to cover up uh, Unit 2 Electronic Spreadsheet Advanced, that is a part of class 10th IT syllabus. And in Unit 2, I'm providing this video to you to explain session 1, that is analyze data using scenarios in GoalSeek, and one of its subtopics, that is creating subtotals. So सब टोटल्स क्या होते हैं, कैसे अप्लाई किए जाते हैं और ओपन ऑफिस कैल्क में हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे. सो लेट्स प्रोसीड एंड to explain this video, I'm going to share with you the PDF of the study material provided by CBSE. You'll find its link in the description. And creating subtotals has been explained very nicely in the study material, and I'm going to cover up this the concepts in this video as per the study material only, strictly as per the study material. So let us quickly have an overview of what is meant by subtotals, and then I'll show it to you practically in OpenOffice Calc. See, subtotal is a concept, okay? Subtotal that adds data arranged in an array. Now, what is an array? Array is a group of cells with labels for columns and rows. फाइन. सो जब आप एक्सेल देखते हो, एक्सेल आपको पता है एक स्प्रेडशीट, जो एक्सेल वर्कशीट्स होती हैं, दे आर अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स. सो a set of rows and columns that is identified by a row label and a column label that forms an array. Using the subtotals dialog आप ओपन करते हो डेटा मेन्यू में जाकर subtotals. ठीक है. So using the subtotals dialog, we can select arrays and then choose a statistical function to apply to them. So you're going to be provided with say about 11 functions, and you can choose any of those functions on the selected arrays, और कोई भी statistical function आप उस selected data पर apply कर सकते हो, and it is going to depend entirely upon your requirements. And आप कितने arrays select कर सकते हो, कितने groups पे work कर सकते हो, वो है maximum up to 3. Fine. So what happens when you click OK? Calc adds subtotals and grand totals to the selected arrays. So subtotaling भी होती है और grand totaling भी होती है. और इसको करते कैसे हैं? Let us proceed and I'll show it to you. Let's first visit the steps, and then I'll take you to Calc and show it to you practically. So steps to insert subtotal values into a sheet are: you have to ensure, steps में आप देखोगे क्या क्या है बेटा steps. Let's see. Ensure that your columns have labels. Fine. Subtotaling जब आप करते हो, labels आपके columns की headings होनी चाहिए. Then select the range of cells that you want to calculate subtotals for, and then go to data menu and choose the option subtotals. Cells select कर लीजिए, डेटा फिल कीजिए, डेटा पर कॉलम्स होने चाहिए, जो कॉलम्स हैं उन पर लेबल्स होने चाहिए, एंड देन यू कैन सेलेक्ट दैट रेंज ऑफ सेल्स एंड चूज डेटा सबटोटल्स. इन द सबटोटल्स डायलॉग बॉक्स, which I'll show you shortly, you have to you'll be provided with 3 groups. I'll just show you, the figure is there underneath. See, this kind of a dialog box you'll get with subtotals, and these are certain things that you have to टेक केयर ऑफ. जैसे कि ये पहली चीज है बेटा कि आपको ग्रुप बाय, देन द सेकेंड थिंग इज कैलकुलेट सबटोटल्स फॉर. फाइन. एंड द थर्ड थिंग इज यूज फंक्शन. कौन सा फंक्शन आपको यूज करना है. सो बेसिकली जब आप सब टोटलिंग करते हो तो आपको ये बताना होता है कि आप ग्रुपिंग किस कॉलम पर करोगे, है ना, ग्रुप्स किस कॉलम पर बनाओगे सब टोटल्स करने के लिए. ठीक है. और ग्रुपिंग करने के बाद जो आपने एक ग्रुप बना लिया, अभी आप प्रैक्टिकली देखोगे, उसमें फिर सब टोटल्स किन किन कॉलम्स पर करने हैं वो सारे यहाँ लिस्टेड होंगे कॉलम्स के नेम्स, एंड यू विल हैव टू चूज द नेम फॉर विच यू वांट टू कैलकुलेट द सब टोटल. फाइन. उसके बाद यहाँ से आप फंक्शंस लोगे, एंड इफ यू कैन फाइंड सी दैट देयर आर 11 फंक्शंस listed over here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, and by default we have the sum function is selected. So आप इस तरीके का ग्रुप करके ओके कर सकते हो, तो आपका सब टोटल अप्लाई हो जाएगा, एंड यू कैन प्रोसीड अप टिल 1 2 and 3 ग्रुप्स. फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 3 ग्रुप्स, अप टू 3 ग्रुप्स यू कैन अप्लाई सब टोटल्स.
फाइन। सो देखते हैं ग्रुप बाई का क्या यूज होता है। ग्रुप बाई में इन्होंने क्या कहा, इन द ग्रुप बाई बॉक्स यू हैव टू सिलेक्ट द कॉलम दैट यू हैव टू सिलेक्ट द कॉलम दैट यू वांट टू ऐड द सब टोटल्स टू। ठीक, किस कॉलम के लिए आपको सब टोटल्स चाहिए। If the content of the selected columns change, then those subtotals are automatically recalculated. You don't have to bother. Once you change the contents of the selected column, the subtotal will automatically be updated. In the calculate subtotals box, select the columns containing the values that you want to subtotal. किन वैल्यूज को आपको सबटोटल करना है उस सिलेक्टेड कॉलम के लिए, है ना, उन कॉलम्स को आप सिलेक्ट करो। एंड इन द यूज फंक्शन बॉक्स यू हैव टू सिलेक्ट द स्टैटिस्टिकल फंक्शन दैट यू वांट टू यूज टू कैलकुलेट द सबटोटल। सबटोटलिंग आपको किन फंक्शंस के लिए करनी है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको उसके लिए फंक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, फंक्शन लिस्ट बॉक्स। सो देयर आर 3 कॉलम्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट इज ग्रुप बाय, सेकंड इज कैलकुलेट सबटोटल्स एंड थर्ड इज use function. And after selecting all these for one group, for every group you will have to repeat the process. Right? For each group, suppose you want to go for the second group, you will have to select the second group also. Same steps have to be repeated for second group also. You have to click on OK. After finishing off with entries for one group, click on OK. And then you will find the subtotals arranged for you. Let's see इट प्रैक्टिकली। सी देखो बेटा, इस कंटेंट को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो। दिस इज द कंटेंट्स ऑफ से अ कंपनी हु डील्स विद गारमेंट्स, होम अप्लायंसेस एंड फुटवेयर। Fine, and it operates in all 4 zones, north, west, east, south, all 4 zones, all 4 areas, north, west, east and south, and its salesmen, there are a number of salesmen who are working for a particular area and in a particular department. So for the first quarter, these are the first quarter, Jan, Feb, March का data है for 2 years, that is 2019 and 2020. That how much sales was performed in these 2 years for the first quarter by each of these salesmen, right? And we have this total sales column, right, which is a sum of sale of 2019 and 2020. I have done the horizontal total also, and for each of these columns I have given this vertical total also, like 2019's total, 2020's total and total sales, right? So अब ये जो total है ये सब total नहीं है, grand total है बेटा, इसे हम बोलते हैं grand total, but that is calculated for the entire column. ठीक है, that is calculated for the entire column, either a set of columns vertically or a set of columns horizontally. But now see, observe what is meant by subtotal. तो सबटोटल के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं कि आपको डेटा को ग्रुप किस बेसिस पर करना है। आप चाहो तो डिपार्टमेंट के बेसिस पर ग्रुप कर सकते हो कि एक गारमेंट डिपार्टमेंट हो गया, एक होम अप्लायंसेस डिपार्टमेंट हो गया, एक फुटवेयर डिपार्टमेंट हो गया। फिर आप देखना चाहोगे हर एक गारमेंट के लिए मेरी टोटल सेल कितनी थी। सो आपने क्या किया, ग्रुपिंग करी, और ग्रुपिंग के अंदर आपने टोटल सेल फाइंड आउट करी फॉर ईच टाइप ऑफ अ गारमेंट। सो दिस इज हाउ सब टोटलिंग इज डन। You can even form groups on area, you can form groups on the basis of months. So all this can be done, and let's see how you can do it. Area wise total sale, see area wise total sale, तो ये मेरा मास्टर डेटा है, उस पर मैंने बेसिस पर ये लिखा। Now area wise total sales में मैंने ग्रुपिंग करी एरिया कॉलम पर, ठीक है ना बेटा, एरिया कॉलम पर ग्रुप किया, और एरिया कॉलम में मेरे 4 ग्रुप्स फॉर्म हुए, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ठीक है। एंड फॉर ईच ऑफ दीज ग्रुप्स व्हाट डिड आई डू, आई फाउंड आउट द टोटल सेल्स, सम ऑफ टोटल सेल कॉलम। सो ग्रुपिंग जो मैंने करी, ठीक है ना, जो आपने लिखा था ग्रुप किस पर करोगे, ईस्ट मतलब एरिया पर, और उसमें आप कैलकुलेट सब टोटल्स किसके लिए कैलकुलेट करोगे, टोटल सेल पर, और कौन सा फंक्शन आपने अप्लाई किया है, सम, ठीक है। सो मैं अभी आपको उसको करके दिखाती हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा कलर स्कीम मैंने ऐसे रखे सो दैट इट क्लियरली इट्स यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश दैट दीज ग्रीन रोज आर इंडिकेटिंग द सब टोटल्स। सो सब टोटलिंग न सिर्फ उस कॉलम के लिए हुई, सब टोटल ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट के लिए भी हुई, और सब टोटल ग्रैंड टोटल भी आपको करके देगा। एंड इफ यू कैन सी, जस्ट मैच टोटल सेल्स इज 32,336, 32,336, एंड सी हम अपने मास्टर डेटा में भी देखेंगे। सो टोटल सेल्स का कॉलम का सम यही है, बट एरिया वाइज में यहाँ क्या डिफरेंस आया कि पहले आपने हर एरिया के लिए सब टोटलिंग करी, और अगर आप इन सब टोटल्स को भी ऐड करोगे सो यू विल गेट दिस वैल्यू।
फाइन. सो दिस इज अबाउट सब टोटल. एक इंट्रोडक्शन हम लेते हैं, मैं आपको उसको करके दिखाती हूँ. ठीक. सो उसके लिए आई विल सिलेक्ट दिस मास्टर डेटा. फाइन. आई सिलेक्ट दिस मास्टर डेटा, आई कॉपी इट and I'll take you to another worksheet. I'll paste it here. Fine. And let's see, it's with this data selected. What will I do? See, what I will do now, I will go to data subtotals. Data subtotals and what will do, यहाँ से ग्रुपिंग हमने किस पे की थी बेटा? एरिया पर. एरिया पर ग्रुप किया और एरिया वाइज हमने क्या निकाला? टोटल सेल कॉलम के लिए, हर एरिया के लिए टोटल सेल कॉलम को सब टोटल करके दीजिए. एंड द फंक्शन दैट वी यूज्ड वाज सम. लेट मी क्लिक ऑन ओके एंड यू विल सी द चेंजेस फॉर योरसेल्फ. सी, आर यू नॉट गेटिंग द सेम आउटपुट? यस यू आर. सी, ईस्ट वाइज ग्रुप बना और ग्रुप में एक बारी फिर से देखो हमने कैसे किया. आई press Ctrl Z, we'll go to data, go to the option subtotals. With this data selected, first group, I'll group by में मुझे बताना है मुझे ग्रुप्स किस पर बनाने हैं. ग्रुप्स मुझे बनाने हैं एरिया कॉलम पर. हर ग्रुप के लिए मुझे किस कॉलम को सब टोटल करना है? टोटल सेल कॉलम को. और कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है? सम. ठीक है. एंड आई क्लिक ऑन ओके एंड सी, फर्स्ट माई ग्रुप्स विल बी फॉर्म्ड एंड देन फॉर ईच ग्रुप दिस टोटल सेल्स का सम निकाला जाएगा एंड फिर एंड में ओवरऑल ग्रैंड टोटल भी इस कॉलम का निकाला जाएगा. so, ठीक है. so this was about when we applied a single group on area. I hope this was clear to you. मैं फिर से Ctrl Z करती हूँ क्योंकि अब इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल ट्राई करेंगे. अब देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज. सी, अब इस ग्रुप को देख के आप समझ जाओगे डिपार्टमेंट पर हमने ग्रुपिंग करी. एक फुटवेयर का डिपार्टमेंट बनता है, एक गारमेंट का, एक होम अप्लायंसेस का. और हर डिपार्टमेंट के लिए हमने क्या क्या फाइंड आउट किया बेटा? सम ऑफ 2019 सेल्स, सम ऑफ 2020 सेल्स एंड ओवरऑल टोटल सेल्स का भी सम. अब इन टोटल्स को भी जल्दी से मैच करके देख लेते हैं. 13796 एंड 18540 मास्टर डेटा में. 13796 एंड 18540. परफेक्ट. फाइन. सो अब देखते हैं, ये हमारा डेटा है. ठीक है. इसको हमने कैसे किया? अब फिर से चलते हैं उसी अपनी सैंपल शीट पर चलते हैं. लेट्स गो टू डेटा एंड सब टोटल्स. ग्रुपिंग किस पर करनी है बेटा? डिपार्टमेंट कॉलम पर. डिपार्टमेंट कॉलम पर ग्रुपिंग करनी है और अब आपको 2019 2020 टोटल सेल्स इन तीनों कॉलम्स के लिए सब टोटल निकालना है. फंक्शन टू बी यूज्ड इज सम. लेट्स सी. देखो वही आउटपुट आ गया ना आपके पास. देखो फुटवेयर और ये टोटल आपका फुटवेयर ग्रुपिंग हुई आपकी डिपार्टमेंट वाइज. 3 groups were formed: footwear, garment, home appliances, and for each group you can see that the sum for 2019, 2020 and total sale, ये 3 सब टोटल्स निकले हैं हमारे. फाइन. फिर से Ctrl Z कर देते हैं और चलते हैं अपनी एग्जाम्पल शीट पर. अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है. इस एग्जाम्पल में हमारा मेजर ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है एरिया पर ईस्ट में. और फिर हमने सेकंड ग्रुपिंग करी बेटा. मैंने आपको बताया ना आप 3 लेवल्स तक के ग्रुप्स अप्लाई कर सकते हो. सो आपने पहला ग्रुप बनाया एरिया पर. सो 4 ग्रुप्स विल बी फॉर्म्ड, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ठीक. उसके बाद आपने हर ग्रुप के अंदर डिपार्टमेंट पर सब ग्रुप करी. सो पहले ईस्ट का एक ग्रुप बना. ईस्ट के अंदर फिर 2 डिपार्टमेंट के ग्रुप्स बने डेटा के अकॉर्डिंग, है ना, फुटवेयर और होम अप्लायंसेस. फिर नॉर्थ का ग्रुप बना. नॉर्थ में भी हमारे गारमेंट और होम अप्लायंसेस 2 ग्रुप्स बने. साउथ में जो हमारा था फुटवेयर एंड गारमेंट 2 ग्रुप्स बने. और वेस्ट में हमारे पास बनते हैं फुटवेयर, गारमेंट एंड होम अप्लायंसेस 3 ग्रुप्स बने. सो पहली ग्रुपिंग हमने किस पर करी? पहली ग्रुपिंग हमने इस डेटा में करी एरिया पर. एरिया के बाद सेकंड एरिया के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया बेटा? दोनों ग्रुप्स के लिए हमने किस चीज का सब टोटल किया है? टोटल सेल्स का, है ना. सो ईस्ट के लिए टोटल सेल्स का सब टोटल, नॉर्थ के लिए टोटल सेल्स का सब टोटल, साउथ के लिए और वेस्ट के लिए. सिमिलरली हर मेजर ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के अंदर सेकंड ग्रुप क्या था? डिपार्टमेंट. सो डिपार्टमेंट वाइज हर डिपार्टमेंट का सब टोटल भी यहाँ पर आया है. ठीक है. सो लेट्स सी हम 2 ग्रुप्स कैसे अप्लाई करते हैं. बहुत सिंपल है. अब आप देखोगे इसमें 2 ग्रुप्स कैसे अप्लाई करते हैं. लेट्स प्रोसीड टू द सेम शीट. आई विल गो टू डेटा एंड सब टोटल्स. फर्स्ट ग्रुप मैंने आपको किस पे बताया था? एरिया पर. पहली ग्रुपिंग हमने करी एरिया पर. एरिया पर ग्रुप बनाया और टोटल सेल के लिए सब फाइंड आउट किया.
अब बढ़ते हैं सेकंड ग्रुप के टैग पर, और सेकंड ग्रुप के टैग पर आप जाके क्या कर सकते हो, आपने उसमें डिपार्टमेंट पे ग्रुप बनाया एरिया वाइज, ठीक है, और डिपार्टमेंट के लिए भी आपने टोटल सेल्स को टारगेट किया, टोटल सेल्स को हम सब टोटल्स निकालेंगे और सम कर दिया। अब आप ओके कर दो। सो सी यू विल गेट द सेम आउटपुट। पहले आपके एरिया पर ग्रुपिंग हुई एंड विद इन एरिया आपके डिपार्टमेंट पे ग्रुपिंग हुई. So second group was formed for department within each area, and for each of these three groups we have found out the subtotal using some function for the total sales column. अब आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि सपोज आपको इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, ठीक है, अगर आपको सब टोटल्स को हटाना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर ग्रुप बाय लिया हुआ है, इसे आप कर दो नन, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड ग्रुप में भी जाओ और ग्रुप बाई को कर दो नन. सो ओके कर दो, आपका ओरिजिनल डेटा वापस आ जाएगा. सो इन केस यू वांट टू रिमूव सब टोटल्स, व्हाट यू हैव टू डू, you have to go to data subtotals and you have to choose none option from this group by list box. Fine. तो इससे आपका जो टोटलिंग थी, सब टोटलिंग थी, दैट विल बी रिमूव्ड. फाइन. सो एक बारी फिर उस शीट को देख लेते हैं, और उस शीट में मैंने आपको आज कितने एग्जाम्पल्स कराए. मास्टर डेटा को लेते हुए हमने पहले एरिया पर ग्रुपिंग करा और सब टोटल निकाला टोटल सेल्स का, फिर हमने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करी और सब टोटल निकाला 2019, 2020 और टोटल सेल्स कॉलम का, फिर हमने दो ग्रुप्स बनाए एरिया और एरिया के अंदर डिपार्टमेंट, और सब टोटल किया हमने total sales column का for each of these groups. Now with this example I have explained you the concept of subtotalings. You can apply it up to 3 groups. Do try out this example children, and बहुत आसान है, सिंपल है. दिमाग में 3 चीज़ें लिखनी है, ग्रुपिंग किस पर करनी है, हर ग्रुप के अंदर सब टोटल किस कॉलम के लिए कैलकुलेट करना है, और कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है. ठीक है, ये आप 3 चीज़ें दिमाग में लेके चलो, बिकॉज फॉर अंडरस्टैंडिंग द डायलॉग बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट and you can apply up to 3 groups. Right? So this was all about your subtotals. I hope you have understood the concept, and I also hope that you will try it out after seeing this video immediately. The link for the study material will be provided to you in the description. Do refer to it and come back to me with your queries and your valuable feedback after watching this video. So till we meet again children, thank you so much. God bless you and happy learning.